Hello, good evening everyone. Welcome to Dhoon Law Mentor, your one-stop solution for judiciary and APO exam preparation. This is your guide Ashish from Dhoon Law Mentor. In today's video, we will be discussing the latest and landmark Supreme Court judgment where the Supreme Court has given detailed guidelines for the security of judicial officers, court complexes, lawyers, court staff and other person coming to the court like witnesses, parties and members of the general public. These guidelines have been issued by the Supreme Court in light of the recent gunfire incident in Delhi court premises. आपको याद होगा 2023 के अंदर आपने शायद वीडियो भी देखा होगा, दिल्ली के कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर गन फायरिंग इंसिडेंट हुए थे। उसी इंसिडेंट से डीपली डिस्टर्ब होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन इशू की है एंड दैट थिंग वाज सेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस इन दिस जजमेंट। तो आज इन्हीं गाइडलाइन को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी केस लॉ को हम डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इफ यू आर अपेयरिंग इन एनी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बिकॉज देयर आर डिटेल्ड गाइडलाइन एज फार एज security of the legal fraternity is concerned in the court complexes. Got my point? Moving further, let us start with the video. The case name is Pradyuman Bisht versus Union of India, 2023 Supreme Court. Pradyuman Bisht versus Union of India, 2023. Case name, as you know that the case name is Pradyuman Bisht versus Union of India 2023, and this case is in response of the concerning violence in the court complexes in National Capital Territory of Delhi. अभी जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर जो फायरिंग हुई थी पिछले साल, उसी के रेफरेंस में ये कोर्ट जजमेंट है जिससे बुरी तरह डिस्टर्ब होकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इश्यू रेज की है, गाइडलाइन इश्यूज की है वेरियस स्टेक होल्डर्स के लिए कि हाउ टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इनसाइड द कोर्ट प्रेमिसेस एंड व्हाई दीज गाइडलाइंस हैव बीन laid down by the Supreme Court, because the court has held that the security of the legal stakeholders is non-negotiable. जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अंदर जो भी अहम पात्र है उनकी सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे वो जुडिशियल ऑफिसर्स हो, एडवोकेट्स हो, कोर्ट स्टाफ हो या विटनेसेस हो या दूसरे मेंबर्स हो who are involved in the justice delivery system. This judgment has been delivered by the Division Bench of Supreme Court of India, and the Division Bench comprises Honorable Justice Ravindra S. Bhatt and Honorable Justice Deepankar Datta. जस्टिस रविंद्र एस भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डिवीजन बेंच ने इस जजमेंट को प्रोनाउंस किया, इस ऑर्डर को प्रोनाउंस किया और वेरियस गाइडलाइंस लेड डाउन की। As far as court's observation and court suggestions, recommendations are concerned, the court held that security of the judicial stakeholders is paramount and immediate actions are demanded. कोर्ट ने कहा कि जो जुडिशियल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सिक्योरिटी पैरामाउंट है और इमीडिएट स्टेप्स लेने की जरूरत है एज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द लीगल स्टेक होल्डर्स इज नॉन निगोशिएबल। जो दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो ये बात बोली कि द सैंक्टिटी ऑफ कोर्ट एज स्पेसेस फॉर जस्टिस मस्ट बी प्रिजर्व्ड। कोर्ट हैज सेड दैट, कोर्ट ने ये बात बोली कि जो कोर्ट प्रेमिसेस होते हैं वो क्या है, स्पेसेस फॉर जस्टिस डिलीवरी। इस सैंक्टिटी को बचाए रखना बहुत जरूरी है और इसी ऑर्डर के अंदर, इसी जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि जो विटनेस या जो पार्टीज न्याय मांगने के लिए, मतलब अपनी सिक्योरिटी के लिए कोर्ट के सामने आता है, वो कोर्ट खुद में ही सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, इसलिए भी वी नीड टू टेक सीरियस मेजर्स एंड स्टेप्स टू एंश्योर better security infrastructure and other measures in this regard. Court further said that the recent gunfire incident in the courts have been deeply disturbing to us. The judges of the Supreme Court are deeply disturbed by the recent gunfire incident in Delhi.
Moving further, the Supreme Court has also shown anguish over the recent security lapses of the court complexes. The apex court is disturbed by the multiple gun firing incident in Delhi in the last year itself, that is 2023. At least 3 violence incidents have occurred in Delhi itself, inside the court complexes. And moreover, the Supreme Court also raised concern over judges being unsafe, referencing the धनबाद incident. सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद के एडीजे साहब का जो इंसिडेंट था वो आपको याद है कि उनको ऑटो ने टक्कर मार दी थी और उनकी डेथ हो गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने उस इशू को भी रेज करते हुए बोला कि जुडिशियल ऑफिसर्स कोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी सेफ नहीं है और कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर भी सेफ नहीं है. दैट इज व्हाई इमीडिएट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड. और कोर्ट ने जब ऐसा कहा, धनबाद के इस इंसिडेंट का भी जिक्र किया इस ऑर्डर के अंदर. मूविंग फर्दर, द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट विटनेसेस आर also at risk because if they come to the court with less security infrastructure and measures, then they will be at risk. No witness will be happy in coming to the court where there are less or improper security arrangements. Okay. In that way, security lapses endanger the witness protections and court records itself. प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है तो कोर्ट के जो रिकॉर्ड है वो भी खतरे में है. क्या पता कौन सा कागज कौन निकाल के ले जाए. मूविंग फर्दर, एज फार एज रिकमेंडेशन, सजेशंस आर कंसर्न, गाइडलाइंस आर कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट देयर नीड्स टू बी सिस्टमैटिक सिक्योरिटी मेजर्स which are required to be taken at the earliest possible. Despite CCTV surveillance, security lapses persist in the court complexes. Court has observed that चाहे हमने कितने भी CCTV कैमरास लगा लिए हैं, फिर भी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं and these are very very disturbing. Court also said that the systematic measures are necessary to maintain judicial system faith. जो सिक्योरिटी मेजर के रेफरेंस में जो भी स्टेप्स उठाने हैं वो इतने जरूरी हैं क्योंकि अगर हम अपने जुडिशियल सिस्टम को, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ नहीं कर पाए तो लोगों का जुडिशरी के अंदर फेथ कैसा बनेगा. दैट इज व्हाई these steps are also required. Moreover, the court also observed that digitization of courts and technology integration are essential progress steps. कोर्ट ने ये बोला कि जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है या फिर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हम जो अपनी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं या कर सकते हैं, they will be the welcome steps toward ensuring a safe environment in the court complexes. डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स या फिर डिजिटाइजेशन आपका सीसीटीवी इंस्टॉलेशन हो या और कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन हो, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होंगी. मूविंग फर्दर, सिक्योरिटी, एज फार एज सिक्योरिटी प्लान रिकमेंडेशन, द सुप्रीम कोर्ट हैज said that there should be a detailed security plan made by the state governments for each of the district and that needs to be implemented at the earliest. और जो ये प्लान बनाएगा कौन? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की ये ड्यूटी लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. देखिए क्या लिखा है, हाई कोर्ट टू प्रिपेयर सिक्योरिटी प्लान विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द पुलिस. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ड्यूटी लगाई है कि हाई कोर्ट shall prepare a detailed plan, security plan with state government and police department. स्टेट राज्य सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कंसल्टेशन में हाई कोर्ट एक डिटेल्ड सिक्योरिटी प्लान बनाएगी अपने स्टेट के लिए एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉलेशन प्लान्स विद स्टेट फंडेड एग्जीक्यूशन. हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीसीटीवी कैमरास कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर लगाए जाने चाहिए और जो इसका सारा खर्चा आएगा दैट शुड बी थ्रू द स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट. स्टेट इसको स्पॉन्सर करेगा इस प्रोजेक्ट को. Moreover, the court also said that the proposal for permanent court security unit in each complex, हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए एक परमानेंट कोर्ट सिक्योरिटी यूनिट की स्थापना की जाए जिसका पर्पस होगा उस पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स की रक्षा करना, उनके ऑफिसर्स की रक्षा करना, वो सारी चीजें हैं. इसके साथ साथ एक और चीज बोली कि सीसीटीवी इंस्टॉलेशन शुड बी पार्ट ऑफ कोर्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स.
जब भी कोई नया कोर्ट बनता है तो उसके रेफरेंस में कोर्ट ने बोला, जब भी कोई नया कोर्ट बनता है या उसका प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होता है, तब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उसके प्रोजेक्ट स्टेज पर ही, कंस्ट्रक्शन प्लान के अंदर ही सीसीटीवी इंस्टॉलेशन को इंक्लूड कर दिया जाए। बाद में अप्रूवल लेके ऐड ऑन करने के कोई मतलब नहीं है। जब उसका कंस्ट्रक्शन प्लान तैयार हो रहा है उसी के अंदर सीसीटीवी इंस्टॉलेशन को एज अ मैंडेटरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर इंक्लूड कर दिया जाए। वीडियो आपको अभी तक अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अगर आप 1% भी इस वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं। मूविंग फर्दर, डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स। देखिए, कोर्ट के रिकॉर्ड्स और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे प्राइवेसी कंसर्न कोर्ट ने रेज किया। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि हाई कोर्ट टू टेक मेजर्स फॉर डाटा एंड प्राइवेसी कंसर्न। हाई कोर्ट को डाटा एंड प्राइवेसी के रिगार्डिंग कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे जो डेटा है, कोर्ट का डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा है, वो कहीं लीक ना हो जाए, उसकी पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। डिस्ट्रिक्ट जजेस टू ओवरसी सीसीटीवी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। अभी देखिए, आपको याद होगा कि लास्ट वाली स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस क्या किया था कि हाईकोर्ट प्लान बनाएगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज सीसीटीवी इंस्टॉलेशन होगा एट द स्टेट फंडेड एक्सपेंस। अब जब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीसीटीवी कोर्ट्स के अंदर लगेंगे तो उस सारे प्लान के एग्जीक्यूशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? वो होगी डिस्ट्रिक्ट जज की। डिस्ट्रिक्ट जज टू ओवरसी सीसीटीवी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। एंट्री एग्जिट सिक्योरिटी के रेफरेंस में कोर्ट ने क्या कहा? एनहांस्ड सिक्योरिटी एट एंट्री एग्जिट पॉइंट्स विद मॉनिटरिंग एंड इक्विपमेंट। कोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको और रिवैम्प करने की जरूरत है। प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए एंट्री एंड एग्जिट लेवल पर, और जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनके पास हाई एंड इक्विपमेंट्स होने चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी मेंटेनेंस। ओके, मूविंग फर्दर, so with reference to the regulating court premises, the Honorable Supreme Court also said that the authorities need to check permission for the shops within the court premises। देखिए, आपको भी पता है कोर्ट्स के अंदर बहुत सारी दुकानें चलती हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या उससे भी लोअर कोर्ट्स हो। देन इन दैट केस कोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपकी जो दुकानें चलती हैं वो हो सकता है सिक्योरिटी थ्रेट हो। So in that case, the authorities are required to check the shop vendors in the court complexes। कहीं दुकान के आड़ में कुछ और तो नहीं चल रहा है। इन सारी चीजों को भी इंश्योर करने की तरफ कोर्ट ने इशारा किया, और मैं मानता हूं कि जो ये पॉइंट जो शॉप वेंडर्स का रेज किया है, दैट इज अ वैलिड पॉइंट एज फार एज सिक्योरिटी ऑफ द लीगल स्टेक होल्डर्स इज कंसर्न, एंड that needs to be properly verified. Only then shops to be allotted within the court complexes. The immediate availability। एक और चीज कि देखिए, कोर्ट ने इस चीज को भी ध्यान में रखा कि खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना हो जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, तो उस स्थिति से निपटने के लिए इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ एम्बुलेंसेज एंड फायर फाइटिंग सर्विसेज शुड बी ऑलवेज रेडिली अवेलेबल for the safety and security of court complexes। और इसके ऊपर एक चीज और बोला कि assured access for emergency vehicle to court premises at all time, कि जो मतलब ट्रैफिक फ्री कंजंक्शन होना चाहिए कोर्ट्स के आसपास। अगर कोई ऐसी स्थिति, आपातकाल स्थिति होती है तो व्हीकल्स को, इमरजेंसी व्हीकल्स को कोर्ट पहुंचने में कोई तकलीफ ना हो, इजी एक्सेस हो जाए। मूविंग फर्दर, लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बोला, स्टेट्स नीड्स फॉर डिजिटाइजेशन स्पेशली एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिजिटाइजेशन की जरूरत है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस चीज का हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कोर्ट ने बोला इनोवेटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है एज फार एज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज कंसर्न। मूविंग फर्दर, हाई कोर्ट चीफ्स की क्या ड्यूटी लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या लिखा, चीफ जस्टिस टू डिसाइड ऑन द कमेटी फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जो हाई कोर्ट्स को प्लान बनाना था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का स्टेट के लिए, उसके लिए कमेटी गठित नहीं, या तो नई कमेटी गठित कर सकते हैं या कोर्ट मैनेजमेंट कमेटी है उसकी मदद से भी वो काम किया जा सकता है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूटी किसकी लगाई है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स की। वेरियस हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट है
उनके चीफ जस्टिस की ड्यूटी है। एंड अ कमेटी कंप्राइजिंग वेरियस स्टेक होल्डर्स टू बी कंसिडर्ड। अगर आपको जो एग्जिस्टिंग कोर्ट मैनेजमेंट कमेटी को अगर ये कार्यभार नहीं सौंपना है तो आप एक नई कमेटी का भी गठन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। मंथली रिपोर्ट्स टू बी सबमिटेड बाय हाई कोर्ट ऑन सिक्योरिटी मेजर्स की हर महीने क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं, ये रिपोर्ट हाई कोर्ट सबमिट करेगी किसको? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट टू सबमिट रेगुलर रिपोर्ट्स ऑन सिक्योरिटी मेजर्स। लॉयर्स मस्ट फील सेफ टू इफेक्टिवली रिप्रेजेंट देयर क्लाइंट। जब लॉयर्स कोर्ट के सामने आते हैं तो उनको भी तो सेफ फील होना चाहिए। अब कोई वकील साहब कोर्ट के अंदर जा रहे हैं, उन्हें यही खतरा हो कि कब गोलियां चल जाए, बम फट जाए। तो उस चीज को हटाने के लिए, बिल्कुल दिमाग में से फियर को बिल्कुल दिमाग में से हटाने के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स आर रिक्वायर्ड। मूविंग फर्दर, कोर्ट स्टाफ अश्योरेंस। कोर्ट स्टाफ नीड अ सिक्योर वर्क प्लेस टू सपोर्ट लीगल प्रोसीडिंग। जो कोर्ट का स्टाफ है उसे भी तो बिल्कुल एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए ताकि वो लीगल कार्यवाही की सही ढंग से मदद कर सके, संपन्न होने में सही से मदद कर सके, पब्लिक का ट्रस्ट बनेगा, कॉन्फिडेंस बनेगा, ये सारी चीजें हैं। इसी के साथ जो हमारा आज का वीडियो था ऑन सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस एज फार एज सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ द कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, जुडिशियल ऑफिसर्स, एडवोकेट्स, कोर्ट स्टाफ एटसेट्रा इज कंसर्न, जिसके अंदर कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस लेट डाउन की, और जो गाइडलाइन लेट डाउन की वो सारी मैंने आपको कंक्रेटाइज करके, कंसाइज करके आपको बता दिया है। आप बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। जैसा भी लगा आप बताइएगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी फीडबैक है आप अपना फीडबैक दीजिएगा। एज फार एज अस इज कंसर्न, हम जुडिशियल सर्विसेज एंड एपीओ एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एंड्रॉइड ऐप या फिर हमारी वेबसाइट www.doonlawmentor.com से हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक चीज मैं बता देता हूं कि हमने हमारी वेबसाइट पर आप लोगों के लिए एक फ्री कोर्स चलाया हुआ है विच इज रिलेटिंग टू अल्टीमेट जुडिशरी प्रीवियस पेपर्स कंपेंडियम कोर्स, और इसी के साथ एक और फ्री कोर्स है अल्टीमेट एपीओ एडीए, इस तरीके के जितने भी एग्जाम हैं उनका प्रीवियस ईयर पेपर कंपेंडियम कोर्स। इन कोर्सेज के अंदर आपको हर स्टेट के जुडिशरी के प्रीवियस ईयर के पेपर, चाहे वो मेंस के हों या प्रिलिमिनरी एग्जाम के हों, आपको एक जगह मिलेंगे, और उसके साथ साथ जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन एटसेट्रा होंगी वो भी आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। सिर्फ एक कोर्स का हिस्सा बनना है और आपको पूरा झंझट खत्म। एंड दीज कोर्सेज आर एब्सोल्युटली फ्री। उसके अलावा कुछ पेड कोर्सेज भी है आप जिनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हमारे जो स्टार कोर्सेज है दैट इज अल्टीमेट जुडिशरी मास्टरी कोर्स, और दूसरा है अल्टीमेट यूपी एपीओ एंड यूके एपीओ मास्टरी कोर्स बंडल 2024, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। विद दिस I would say thank you for giving us your valuable time. See you in the next video.